Hello, dear nursing officers. This is our next class on OBG. In that, we are going to discuss about ectopic pregnancy. See, before that, first we need to discuss about parts of fallopian tube and uterus. See, this is the uterus, or these both are fallopian tubes. Huh? So, what is the definition of ectopic pregnancy? Ectopic pregnancy is a implantation of zygote outside the uterine cavity. This is the uterine cavity, and normally our zygote is implanted here inside the uterine cavity. What is meant by ectopic? Ectopic means outside the normal part. Here, zygote is implanting outside the uterine cavity that either may be in the isthmus, ampulla, infundibulum, or ovary, or in the cervix. नॉर्मली हमारा बेबी इम्प्लांट कहाँ होना था? जाइगोट इम्प्लांट होना था यूट्राइन कैविटी में. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कहाँ होगा? आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, इस्टमस में, एम्पुला में, इंफंडिबुलम में और ओवरी में. ठीक है, ये हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा. हम पहले पार्ट्स देख लेंगे थोड़ा. इधर देखो. Before to this isthmus, this starting point of fallopian tube, we call it as interstitial part. What is this? Interstitial part of fallopian tube. And second one is isthmus. Third is ampulla. And fourth part is infundibulum. And fifth is fimbriae. These all are parts of the fallopian tube. See here, in this, widest part of the fallopian tube is ampulla. This is the widest part and 5 centimeter in length. Okay. And what is the narrowest part? Interstitial part is a narrowest part. Okay. See, according to this, we are categorized the ectopic pregnancy here. फर्स्ट अपन ने देखा, पहले पार्ट था इंटरस्टिशियल पार्ट, सेकंड isthmus, थर्ड एम्पुला था और इन्फंडिबुलम एंड फिम्ब्रे. ठीक है. अभी आप ये यूट्रस का ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ हम फेलोपियन ट्यूब का बारे में देख लेंगे. ठीक है, हो गया. चलो आगे चलते हैं. उसमें से जो 4-5 पार्ट है ना फेलोपियन ट्यूब का, उसमें से फर्स्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट. इसको हम बोलेंगे नैरोएस्ट पार्ट, बिकॉज इसका डायमीटर है, कितना है डायमीटर? 1 mm है. ठीक है, diameter equal to 1 mm. So we call it as narrowest part of the fallopian tube, and widest part of the fallopian tube, that is the ampulla. चलो इधर देखो, ये डायग्राम में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? Implantation of zygote outside the uterine cavity, either maybe it is in the interstitial or ischemic ampullary part or ovary as well as the cervix of the uterus. This is the definition of ectopic pregnancy. And see here, in that total 95% of ectopic pregnancy is in the tubal pregnancy series. जो भी ectopic pregnancy का definition अभी बताया ना अपन, उसमें से ये इधर से लेके इधर तक जो फेलोपियन ट्यूब है ना, इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस कितना है? 95% है. ठीक है. इंटरस्टिशियल पार्ट में हो सकता है, और इस्टमस पार्ट, नहीं तो एम्पुलरी में, नहीं तो फिमरे, इधर भी हो सकता है. ठीक है. इधर से लेकर इधर तक एक टोटल फेलोपियन ट्यूब है ना, इसमें 95% चांस रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, और 5% सर्विक्स, ओवरी, ओवरियन लिगामेंट और ओवरी, ये हो सकता है. और पर्टिकुलर पार्ट पूछेंगे ना, टोटल
ये ट्यूबल प्रेगनेंसी बता रहा है 95%। ठीक है। सिंगल मोस्ट आंसर पूछेंगे ना आपको, ये होगा एम्पुलरी। 70% ऑफ द ectopic pregnancies are situated in ampullary part of the fallopian tube. Huh? This is the single and most correct answer. That is the ampullary part of fallopian tube. चलो, और सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइट रहेगा दैट इज द स्टमक। ठीक है। क्यों एम्पुलरी पार्ट में हो रहा है, इधर थोड़ा सा देख लो। तो जाइगोट इम्प्लांट होने के लिए सफिशियंट जगह कहाँ है, एक यूट्रस में है। ठीक है। और इसको छोड़ के एम्पुलरी पार्ट है ना, सेकंड यूट्रस होने के बाद में सेकंड सफिशिएंट जगह जाइगोट के लिए एम्पुलरी पार्ट ही होगा। क्यों, इसका डायमीटर, और इसको बोला था मैंने वाइडेस्ट पार्ट बोला था, और लेंथ कितना था, 5 सेंटीमीटर था। तो अगर जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट कहाँ इम्प्लांट हो सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन रहेगा, एम्पुलरी पार्ट। सो इसीलिए 70% ऑफ ectopic pregnancies are situated in ampullary part of the fallopian tube। हो गया। चलो, डेफिनेशन देख लिया अपन। नेक्स्ट देख लो क्या है नेक्स्ट। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर मेंशन किया हूं मैंने। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूं इसको। मोस्ट कॉमनेस्ट साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज द fallopian tube। यस। और सेकंड, इन fallopian tube which part is the most common, that is the ampullary part। ठीक है। fallopian tube तो हो गया, टोटल मोस्ट कॉमन बताया। अगर पर्टिकुलर पार्ट पूछेंगे ना, दैट इज द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द fallopian tube। और नेक्स्ट लाइन देख लो, अर्लीस्ट टू रप्चर ectopic pregnancy। सी हियर, अर्लीस्ट टू रप्चर, दिस इज द इस्थमिक ectopic pregnancy। ठीक है। नेक्स्ट, लेट टू रप्चर ectopic pregnancy, दैट इज द इंटरस्टिशियल ectopic pregnancy। ठीक है। ये जो इस्लामिक ectopic pregnancy है ना, लेस देन 6 वीक रहेगा। अर्लीस्ट रप्चर हो सकता है, मतलब 6 वीक्स का अंदर अंदर ही रप्चर हो सकता है। और लेट टू रप्चर ectopic pregnancy, दैट इज द इंटरस्टिशियल ectopic pregnancy, ये 3 to 4 मंथ तक रहेगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ectopic pregnancy, दैट इज ऑल्सो इंटरस्टिशियल ectopic pregnancy। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी मैंने मेंशन किया हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए पर्टिकुलर लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, उसी को लेके आऊं मैं। क्लासिकल ट्रायड फॉर ectopic प्रेगनेंसी, क्या ectopic प्रेगनेंसी का क्लासिकल ट्रायड क्या रहेगा, एक अमीनोरिया रहेगा, अमीनोरिया, और पेन रहेगा, एंड ब्लीडिंग। दिस इज द क्लासिकल ट्रायड ऑफ ectopic प्रेगनेंसी। थोड़ा सा इधर पार्ट का बारे में देख लो। अर्लीस्ट टू रप्चर ectopic प्रेगनेंसी, दैट इज द इस्टमिक पार्ट। इस्टमिक पार्ट मतलब कहाँ है, इस्टमिक पार्ट में इधर इम्प्लांट हो रहा है, और दिस इज द साइट ऑफ अर्लीस्ट रप्चर। क्या ये अर्लीस्ट रप्चर हो सकता है, लेस देन 6 वीक्स का अंदर अंदर रप्चर होगा। और लेट टू रप्चर द ectopic प्रेगनेंसी, दैट इज द इंटरस्टिशियल। देखो इधर, दिस इज द इंटरस्टिशियल, एंड ये लेट रप्चर होगा। कब तक होगा रप्चर, 3 to 4 मंथ तक रहेगा। ठीक है, बाद में रप्चर हो सकता है। और मोस्ट डेंजरस भी ये इंटरस्टिशियल, याद रखना है। नेक्स्ट इधर देखो, type of ectopic pregnancy and criteria for diagnosis them, criteria to diagnose। ठीक है। जो इस लाइन पे लिखा हूं ना मैं, ये टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा, टाइप्स ऑफ ectopic प्रेगनेंसी रहेगा। और इस साइड मैंने लिखा हूं ना, ये क्राइटेरिया टू डायग्नोस। अपन को ये सब देखना नहीं है, सिर्फ एक लाइन पे याद रखना है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है।
अब आ सकता है, इसीलिए एक बार देख लेना है, ठीक है। प्राइमरी abdominal प्रेगनेंसी, अगर प्राइमरी abdominal प्रेगनेंसी हो रहा है ना, इसको इसके लिए क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे हम? स्टडी फोर्स क्राइटेरिया, ठीक है। और सेकंड ओवेरियन प्रेगनेंसी क्राइटेरिया, दैट इज द स्पिंजलबर्ग्स क्राइटेरिया। और थर्ड वन इज सर्वाइकल प्रेगनेंसी, दिस इज अ रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, रॉबिन्स क्राइटेरिया। रॉबिन्स क्राइटेरिया, this is the criteria which is using for diagnosis of cervical pregnancy। चलो नेक्स्ट देखो, बेस्ट नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बेस्ट नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज द ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी प्लस सीरीज ऑफ बीटा एचसीजी लेवल्स, ठीक है। व्हेन पेशेंट इज स्टेबल, स्टेबल पेशेंट में ये अपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग्स ऑन ईबीसी सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने बोला बेस्ट नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज द ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में क्या फाइंडिंग्स रहेगा? अगर कोई महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है और उसका फाइंडिंग्स, यूएसजी में फाइंडिंग्स क्या रहेगा? लिखो, फर्स्ट फाइंडिंग ये रहेगा, एम्प्टी यूटेरस, एम्प्टी यूटेरस, यूटेरस में बच्चा नहीं रहेगा क्योंकि जाइगोट इज आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। एंड सेकंड इज एडनेक्सल मास, और जो एडनेक्सल मास है ना, उसमें कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा, एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो आपने ईवीजी किया है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का महिला को आपने ईवीजी करके देखेंगे, तब उसका यूट्रस एम्प्टी रहेगा क्योंकि जाइगोट इज आउटसाइड द यूट्रस। एडिनेक्सल मास मतलब यूट्रस का बाहर कौन सी जगह पे वो इम्प्लांट हुआ है ना, उसको हम एडिनेक्सल मास बोलेंगे। और वो मास को आपने देखोगे ना, उसमें कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हार्ट बीट स्टार्ट रहेगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। दीज ऑल आर द यूएसजी फाइंडिंग्स इन ectopic pregnancy। Next, we will move towards next point. Gold standard investigation for ectopic pregnancy, that is the laparotomy. Sorry, laparoscopy. Laparoscopy. This is the gold standard investigation for pregnancy. क्यों ये गोल्ड स्टैंडर्ड होगा इधर? Laparoscopy. Why we call it as gold standard investigation? Because we are using here as a diagnostic purpose as well as therapeutic purpose. As well as therapeutic purpose. ओके, अभी देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड इसीलिए बोल रहे हैं हम। आपने लैप्रोस्कोपी किया है, आपको पता चल गया चलेगा एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है करके, और आपको चाहिए तो आप लैप्रोस्कोपी जो कर रहे हो ना, उसी में से उसको हटा भी सकते हो, मतलब इसको रिमूव कर सकते हो। कैसे? वैसे तो आप लैप्रोस्कोपी कर रहे हो और थेरापेटिक मतलब थेरापेटिक पर्पस आप इधर सल्पिंगोटॉमी करके इम्प्लांटेड मटेरियल को रिमूव भी कर सकते हो। ओके, व्हाट इज मीन बाय सल्पिंगोटॉमी? ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ओके, कौन सी जगह पे वो इम्प्लांट हुआ है ना, उसको वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट को ओपनिंग करना है और वो प्रोडक्ट को आप उधर से रिमूव करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इधर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया हूं, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रिस्क फैक्टर और कॉजेस, व्हाट इज द कॉजेस और रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पढ़ लो क्या है। मैक्सिमम चांस ऑफ डेवलपिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन ए प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, ऑप्शन बी मल्टीपल एमटीपीस, व्हाट इज मीन बाय एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड सी इज आईयूसीडी इंसर्शन।
और नेक्स्ट प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दीज आर ऑप्शन। तो इधर पूछा हुआ है मैक्सिमम चांस ऑफ डेवलपिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो वैसे ही सब देखो, सब ऑल आर द रिस्क फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बट इन क्वेश्चन दे मेंशन हियर मैक्सिमम चांस मतलब आंसर गोes टू प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, एक बार वैसे ही हम रिस्क फैक्टर देख लेंगे। हाई रिस्क फैक्टर क्या रहेगा? ठीक है, हाई रिस्क फैक्टर्स रहेगा ट्यूबल करेक्टिव सर्जरी, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, थर्ड प्रीवियस ectopic pregnancy, fourth artificial reproductive technology like IVF, और pelvic inflammatory disease, लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेड ट्यूबल पैथोलॉजी। इसी में से आपको सिर्फ दो याद रखना है, मैंने ऑलरेडी उधर हाईलाइट किया। ठीक है, प्रीवियस ectopic pregnancy इज मैक्सिमम रिस्क, ये होगा मैक्सिमम रिस्क रहेगा। ठीक है, और pelvic inflammatory disease is a most common risk और मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, चलो ये हो गया हाई रिस्क। और मॉडरेट रिस्क क्या रहेगा? इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर्स, प्रीवियस जेनिटल इंफेक्शन एंड मल्टीपल पार्टनर, और स्लाइट रिस्क प्रीवियस पेल्विक और abdominal सर्जरी, स्मोकिंग, डाउचिंग, intercourse before 18 years. These all are risk factors of ectopic pregnancy. चलो इधर देखो, इधर एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन से अपन का डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। क्या है क्वेश्चन? पेशेंट वाज ब्रॉट टू गायनी कैजुअलिटी विद अ हिस्ट्री ऑफ 6 वीक अमीनोरिया, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, और सीवियर पेन abdomen, bleeding, fainting, BP recorded was 80 by 50 mm of Hg. What is your likely to diagnosis and management for this condition? डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट का बारे में पूछ रहा है। उससे पहले आपको देखना होगा क्या गायना कैजुअलिटी में पेशेंट आया है, हिस्ट्री है उसका 6 वीक्स ऑफ अमीनोरिया है, सीवियर abdominal पेन है, और ब्लीडिंग, पेंटिंग, बीपी वॉस 80 बाई 50। और देखो इधर आपका जो साइंस एंड सिम्टम्स देख रहे हो ना आप, मैंने क्लासिकल ट्रायड क्या बताया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? अमीनोरिया है और सीवियर abdominal पेन, मैंने पेन करके मेंशन किया था, ये भी था और ब्लीडिंग भी था। तो इधर देख के एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो पता चल गया। और जब आपने बीपी पे ध्यान दोगे ना, 80 बाई 50 मतलब हाइपोटेंशन हो रहा है, बीपी ड्रॉप हो गया, मतलब पेशेंट शॉक में जा रही है ये। ठीक है, मतलब डायग्नोसिस क्या कर दिया आपने? ये होगा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक क्या हो गया डायग्नोस? रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, आपने डायग्नोसिस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट पूछ रहा है इसका। ठीक है, ये तो आप अच्छे से मैनेज करना होगा क्योंकि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी आप क्लिनिकली कैसे डायग्नोज करोगे? ऑलरेडी साइंस एंड सिम्टम्स तो बता रहा है ना? तो कंफर्म ऐसे करना है, अभी इमरजेंसी मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, आपके पास यूवीजी मशीन वगैरह नहीं है। तो क्या करेंगे अपन? अभी फर्स्ट क्या करेंगे? एक यूपीटी करेंगे। व्हाट इज मीन बाय यूपीटी? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे? पीवी करेंगे, पर वजाइनल एग्जाम करेंगे। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा फुलनेस ऑफ पाउच ऑफ डगलस। मैं बोलता हूँ व्हाट इज मीन बाय पाउच ऑफ डगलस, अगले डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन में आपको फुलनेस ऑफ पाउच ऑफ डगलस मिल रहा है। और थर्ड क्या रहेगा? नॉर्मल यूट्राइन साइन साइज, यूट्राइन साइज और टेंडरनेस रहेगी। ठीक है, ये आपने देख लिया, आपको पता चल गया अभी।
क्या पता चल गया? इट इज अ केस ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी आपका मैनेजमेंट क्या रहेगा? चलो मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे पहले? फर्स्ट मैनेजमेंट में रिससिटेट द पेशेंट। रिससिटेट द पेशेंट। रिससिटेट करना है। रिससिटेट करना है तो आप क्या करना है? पहले एक आईवी लाइन लगाना है 18 गेज का, तो कैनुला लगाओ। नहीं है तो 16 गेज का एक कैनुला लगाओ। ठीक है, और स्टार्ट आरएल। ठीक है, और नेक्स्ट अरेंज ब्लड। अरेंज ब्लड, ये होगा मैनेजमेंट। ठीक है, इधर देख लो और एक बार बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। Patient was brought to gynae casualty with a history of 6 weeks amenorrhea and severe abdominal pain, bleeding, painting, and BP recorded was 80 by 50 mm of Hg. What is likely to diagnose and management? जो हमारा क्लासिकल ट्राइड का साइंस एंड सिम्टम्स तीनों है। ठीक है, पेन है, एमनोरिया है और ब्लीडिंग है। और जब आप बीपी देख रहे हो ना पेशेंट का, शॉक में चले जा रही है, मतलब हाइपोटेंशन है। तो इससे ये पता चल जाएगा जो इम्प्लांटेड जाइगोट था ना वो साइड से रप्चर हो गया है और ब्लीडिंग हो गया, इसीलिए शॉक में जा रही है। मतलब व्हाट इज द डायग्नोसिस? दिस इज द रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ऐसे केस आता है ना आपको, पहले आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं रहेगा, तब क्या करोगे आप? पहले यूपीटी टेस्ट करना है, पॉजिटिव आ जाएगा। पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? फुलनेस ऑफ पाउच ऑफ डगलस एंड नॉर्मल यूट्राइन साइज रहेगा, यूट्राइन साइज नॉर्मल रहेगा इधर, और टेंडरनेस रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा ये रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आपका मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। फर्स्ट मैनेजमेंट इज रिससिटेट। रिससिटेशन में पहले आपको एक लार्ज कैनुला लगाना है, इधर में भी 18 गोज और 16। स्टार्ट आईबीआरएल एंड अरेंज 1 पॉइंट ब्लड। ठीक है, ये होगा हमारा इमरजेंसी मैनेज और इमीडिएट मैनेज। दिस इज अ इमीडिएट मैनेजमेंट होगा हमारा। इमीडिएट मैनेजमेंट है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। चलो, व्हाट इज मीन बाय पाउच ऑफ डगलस? मैंने उधर आपको बोल दिया पाउच ऑफ डगलस मतलब, एक्सप्लेन करता हूं करके। इधर देखो, ये आगे वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलेंगे, क्या है ये है ब्लैडर। ये है ब्लैडर है। ठीक है, और ये है ना, ये है यूटरस। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट है ना, जो ये पार्ट है ना, पेन दूसरा ले लेता हूँ। ये पार्ट है ना, ये क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन और सिग्माइड कोलन। ठीक है, अभी जो यूटरस और ये लार्ज इंटेस्टाइन का बीच में एक पोर्च बन रहा है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ब्लैडर और यूटरस का बीच में एक पोर्च बन गया। दिस इज यूटरस। ठीक है, और ये दोनों का बीच में एक पोर्च बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूटरो वसाइकुलर पोर्च बोलेंगे। ठीक है, और जो ये यूटरस है ना, ये यूटरस है। यूटरस और लार्ज इंटेस्टाइन का बीच में एक पोर्च आ रहा है। ठीक है, ये पोर्च आ रहा है। इधर आपने देख सकते हो ब्लड है। ब्लड है ना, क्यों ब्लड है इधर? जो यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब्स है ना, इधर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था, ये रप्चर हो गया और इधर ब्लड कलेक्ट हो गया। ठीक है, ये पार्ट को, दिस इज अ पाउच बिटवीन यूट्रस एंड लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। वी कॉल इट एज, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कल डे सैक बोलेंगे। नहीं है तो इसको बोलेंगे पाउच ऑफ द ग्लास। ठीक है, नॉर्मली इसमें ये पाउच में कितना 1 to 3 ml फ्लूइड रहेगा। अगर ये फ्लूइड ज्यादा रहेगा ना, कहाँ, कौन सा कंडीशन में ज्यादा रहेगा? पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज में। अभी इसमें फ्लूइड ना होकर इधर ब्लड कलेक्ट हुआ है, मतलब दिस इज अ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अभी तक अपन ने देखा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट, और अभी देखेंगे
अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और उसका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा मीथोट्रेक्सेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। इधर से वन लाइनर क्वेश्चन हो गया ये। और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेडिकल मैनेजमेंट इन ectopic pregnancy? Size of the zygote is or implanted product is less than 4 centimeter and cardiac activity absent रहना है और beta HCG level is 5000. Next, patient is hemodynamically stable रहना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, फैमिली नॉट कंप्लीट, मतलब अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट और मीथोट्रेक्सेट देंगे। अगर ऑलरेडी 2 to 3 बच्चे हैं, उसको हम डायरेक्ट सर्जरी ट्रीटमेंट देके उसको साल्पिंजेक्टोमी करेंगे, ठीक है। मतलब ट्यूब रिमूव करेंगे कट करके, है ना। नेक्स्ट, सर्जरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए हमारा क्राइटेरिया रहेगा साइज, साइज इज मोर देन 4 सेंटीमीटर एंड कार्डियक एक्टिविटी इधर प्रेजेंट रहेगा और एचसीजी लेवल मोर देन 5000 रहेगा इधर, ठीक है। उधर एचसीजी लेवल लेस देन 5000 था, इधर मोर देन 5000 है, ठीक है। और पेशेंट उधर स्टेबल था, इधर अनस्टेबल है, इसीलिए हम मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई नहीं कर रहे, डायरेक्ट सर्जरी करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट फैमिली ऑलरेडी 2 to 3 बच्चा है, इसीलिए इसको अभी हम डायरेक्ट सल्पिंजेक्टोमी करेंगे। सल्पिंजेक्टोमी मतलब क्या है? ये है यूट्रस, है ये फेलोपियन ट्यूब था, इधर अभी बच्चा ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इधर से कट करके रिमूव करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सल्पिंजेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। इधर पूरा हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसी में से आपको एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू।